Hello students, welcome to all of you Shiksha 360. As all of you are aware that basically in the promotion examination or in the interview, they will ask some scenario based question along with the basic question, or even if you are preparing for like scale 3 to scale 4, sometimes basically they will ask scenario based questions, or even in the Jaiib Caiib, these types of questions they will ask in the form of the case study. So here basically we will discuss some cases here. Today, basically, we will discuss two cases. So let's start our discussion. Just for the understanding purpose we are discussing here, we will provide you the promotion sessions for all the examinations. Details are to be available here. You can go through that. So now first question basically we will present in front of you. These questions basically are sent by some of the students. So we will discuss here with you. So first question basically presents on the screens now. पहला क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले देखो, केस स्टडी के साथ साथ कुछ सेशंस मैंने ना आपके नोट एक्सचेंज के ऊपर, हाउ टू एक्सचेंज, जो आपके म्यूटिलेटेड नोट्स वगैरह होते हैं उनको एक्सचेंज करने का क्या प्रोसीजर है, उसके ऊपर 2 सेशंस अपलोडेड है। वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटली, क्योंकि आरबीआई के द्वारा उसके कारण भी काफी ज्यादा ब्रांचेस पे पेनल्टीज मार्क करी जा रही है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली गो थ्रू दैट आल्सो, बिकॉज डेफिनेटली दे विल आस्क सम क्वेश्चंस in the examination regarding that, either in the written form or in the interview purpose. Clear? Definitely you can go through that and it will help you. So now we will move towards our today's topic. So first case study, that is regarding the SB account. Today basically 2 case study we will discuss, short case study, and both are related to the regarding SB saving account. So Raman, it is a person who has maintaining rupees 2 lakh in the saving account. Clear? Raman has rupees 2 lakh in the saving bank account, died recently. So today, basically you have settled the account. Now the nominee comes and basically after checking all the details, you have settled the account by transferring the balance, entire balance, along with the accrued interest, which we have not pay or credit in the customer account till now, but we have to pay. For credit of Vinod, his son also the nominee of the account. क्लियर? जो आपका जो पैसा है सारा का सारा जो आपने अकाउंट सेटल करा है, उसका पैसा किसके अकाउंट में गया? नॉमिनी के अकाउंट में गया। जो नॉमिनी कौन है? विनोद है। विनोद कौन है? उसका सन है। अब दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत इसके बाद आती है। However, you have received an income tax attachment order against the Raman of ₹50,000. उसके बाद दिक्कत क्या है कि आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से एक ऑर्डर आया, और क्या ऑर्डर है? अटैचमेंट ऑर्डर। इसके बारे में यू हैव ऑलरेडी अवेयर व्हाट इज अटैचमेंट ऑर्डर। इफ यू आर नॉट अवेयर देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर द वीडियो लिंक इन विच वी हैव डिस्कस्ड। However, you have received an income tax attachment order against the Raman for ₹50,000. इसका क्या मतलब होता है कि कई बार उन्होंने टैक्स कम भरा है या कहीं पर कोई और दिक्कत आई है टैक्स के रिगार्डिंग, तो वो बैंक को डायरेक्टली नोटिस निकाल देता है, और बैंक को कस्टमर के अकाउंट के ऊपर होल्ड भी लगाना पड़ता है अगर इस तरह के नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या एनी ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट. So they can mark the hold and they can put the detail there, that is by through this we have marking hold here. So how do you deal with situation? देखो, उन्होंने अकाउंट तो सेटल कर दिया, पैसे विनोद को दे दिए, अब उनके पास तो अकाउंट ही नहीं है, कस्टमर का अकाउंट तो है बट क्लोज्ड है, सेटल्ड है। तो इस तरह की कंडीशन को आप क्या करोगे? जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अगर आपने गो थ्रू करे हुए हैं इस तरह के केसेस, अगर आप ब्रांच में इस तरह के केसेस को डील करते रहते हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है, दिक्कत आ जाती है कि अब सोचने लग जाते हैं करें क्या। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सीधा सा फंडा इसका, अकाउंट क्लोज हो चुका है तो उसके ऊपर होल्ड मारने का कोई रीजन ही नहीं बनता, क्योंकि उसमें कोई पैसा ही नहीं आने वाला। तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बोलोगे? So basically income tax attachment order, basically it is for what? It is basically for the dues from Raman to the government, hence attachable irrespective of existence of the person. अगर पर्सन का अकाउंट सेटल नहीं हुआ होता और उसके अकाउंट में पैसे होते, तो आप इतनी अमाउंट को उस अकाउंट पे होल्ड लगा देते।
पर्सन जिंदा है या नहीं है, बट आपको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसने गवर्नमेंट का पैसा वापस करना है. बट हियर व्हाट विल हैपन, सिंस द बैंक हैज ऑलरेडी पार्टेड विद द फंड एंड ड्यूली डिस्चार्ज हैंस अब्सॉल्व्ड. देखो, उसने ऑलरेडी फंड्स को प्लेस कर दिया है एज पर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द नॉमिनी और एज पर द गाइडलाइंस, और अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो चुका है. अब अटैचमेंट ऑर्डर के रिगार्डिंग बस उसने क्या बोल रहे हैं कि ये अकाउंट सेटल्ड है और इसके नॉमिनी को फंड्स जा चुके हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली. So the income tax authority basically will be informed the same by giving the details of the nominee so that they can proceed accordingly. Okay. So जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा, as we have discussed here, same thing mentioned here, and these types of thing definitely you will experience in your banking career. Clear? Like regarding the attachment order or from the basically court order, these types of things basically definitely you get. And when these types of things arises, most of the like basically persons can individually fill their ITR, clear income tax returns, and sometimes basically they are not fully aware regarding all these things. And after 3 to 4 years, when they are getting aware regarding that, like here the person died, or sometimes basically they will not get their full refund. Clear? Because in the earlier years they are not paying the income tax properly. Clear? These types of things basically definitely you will find in your banking career. Now next question, very very important, and this type of thing also frequently goes in the banking sector. Clear? And lot of news you will also hear that किसी के अकाउंट में गलत पैसे चले गए, किसी के अकाउंट में इतने गलत पैसे चले गए. तो उसके ऊपर क्या बनता है क्वेश्चन, लीगली कुछ है वैलिड या नहीं. सो द बैंक हैज एररनेसली क्रेडिटेड ₹1 लाख रिलेटिंग टू द एज अकाउंट टू बीस अकाउंट. बैंक ने क्या करा, गलती से 1 लाख रुपया जो ए के अकाउंट में डालना था वो किसके अकाउंट में डाल दिया, बी के अकाउंट में डाल दिया. अब बी ने क्या करा आगे चलकर, सब्सिक्वेंटली बी हैज क्लोज द अकाउंट, बी ने अकाउंट ही क्लोज करवा दिया, एंड हैज ड्रॉन द एंटायर अमाउंट अवेलेबल इन द अकाउंट इंक्लूडिंग द रॉन्गली क्रेडिटेड वन. देखो बी ने जब अकाउंट क्लोज कराया तो सारे के सारे पैसे ही मिलेंगे. देखो जितने उसके पैसे पड़े थे और जितने गलती से उस अकाउंट में पैसे गए वो सारे के सारे बी ने ले लिए. अब ए के तो पैसे थे बट ए को नहीं मिले. नाउ ए हैज क्लेम्ड द अमाउंट. अब बैंक आगे क्या करेगा, देखो दो चीज है, गलती तो हमारी भी है, जिसने पैसे डाले उसकी भी गलती है कि उसने चेक नहीं करा, बट जिसके अकाउंट में डले हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैसे उसके नहीं है तो उसको वापस करने चाहिए. बट अब वो वापस नहीं कर रहा, तो लीगली कोई साधन है कि वो पैसे रिफंड करवाए जाए या नहीं. तो उसके रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक नाम एक्ट एक कानून है, ये भी इसके रिगार्डिंग कुछ बोलता है. इसके रिगार्डिंग लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक बीओबी के प्रमोशन एग्जामिनेशन में, कि कौन सा सेक्शन होता है, तो उसी के रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो एनी क्रेडिट अफोर्डेड रॉन्गली must be returned along with interest as this leads to unjust enrichment as per section 72 of contract act 1872. देखो वो कहना क्या चाहता है कि कोई भी अगर रॉन्गली क्रेडिट होता है उसको रिटर्न करना चाहिए along with interest. कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 72 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. In the cited case, the relative vouchers or records etc. has to be scrutinized and the bank will make good the amount to A's account without delay and demur. देखो अगर ए को पैसे मिलने चाहिए थे और ए के अकाउंट में नहीं डले तो बैंक को विल मेक द गुड, मतलब कि उसको ए को पैसे देने चाहिए बिना किसी डिले के, along with the interest also. However, the bank can legally proceed. Clear here, जो बैंक है वो लीगली जा सकता है किसके खिलाफ, बी के खिलाफ, कि आपने पैसे क्यों वापस नहीं करे. However, the bank can legally proceed against B to recover the dues. The concerned staff or the staff concerned must be made accountable for such act. और जिस स्टाफ से गलती हुई उससे तो अकाउंटेबल बनेगा ही. अगर वो बी सामने वाला फिर भी पैसे नहीं दे रहा तो सबसे पहले रिकवरी तो वो कंसर्न स्टाफ से ही होगी. बट ये यहाँ पर एक कंडीशन अराइज हो रही है कि आप लीगली उस पर्सन के तरफ जा सकते हो जिसने पैसे नहीं वापस करे या नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हो. तो थोड़ा सा सेक्शन 72 के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं. सेक्शन 72 कहना क्या चाहता है,
For 1672 of the Principal Act, the following sections shall be substituted, namely, liability of person to whom money is paid or thing, liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion or as a result of fraud, etc. Clear कि किसी को भी पैसे गए हैं. So it is basically liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion or as a result of a fraud. So a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake, whether of fact or law or under coercion, or who obtains such payment or delivered by fraud or misrepresentation or by the exercise of undue influence, they must repay or return it. Clear? They must have to repay or return it. ये कौन सा सेक्शन कहता है? इसी तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था ये लाइंस वगैरह देकर. तो सेक्शन कहता है सेक्शन 72 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो ये सभी चीजें जो अभी हम डिस्कस करें, आप जैब कैब वगैरह में भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके. उसकी इंप्लीमेंटेशन किस किस तरह से हम कर सकते हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस करा. तो इस शॉर्ट सेशन में मैं आप लोगों के साथ 2 केस डिस्कस कर चुका हूँ. होप आप लोगों को दोनों से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. डेली बेसिस पर आपको 2-3 तरह अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे. थैंक यू. और आप ज्यादा जानकारी के लिए और सेशंस के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस.